Hello everybody, welcome to the channel and thank you so much for joining me guys, and thank you to each one of you for being part of this channel, who is a part of this channel, the Genie Tribe. And finally we touched that magical number जिसके बहुत करीब हम बहुत साल से थे, बहुत दिनों से थे, but finally 777 we touched it in the year which is the vibration of 7. 2023 is the number of has the vibration of 7 because it adds up to 7. और finally spiritual tarot genie ने भी 77 के magical number को छू लिया. Now thank you to each one of you who has chosen to be part of this channel, and thank you and congratulations to each one of you who is part of this magical 777 in the magical, equally magical year of 7. Now it's not that कि आप magic इस channel के you're a part of this channel, so it's a very great thing and it's any big achievement, but I just felt कि 777 जो कि काफ़ी दिनों से it was kind of hanging in there, और finally 2023 में जो कि 7 number है, it finally achieved that 777 mark or touched that 77 mark. Just cannot be a coincidence, because as a part of a spirituality I do believe in synchronicities and I believe in divine timing, and I believe that universe is always working for you, whether it is through delays or whether it is through speeding things up or through ups and downs and whatever. So thank you so much to each one of you who is part of this. So let's get started with something today. So while I'm working on one reading, which is going to be a Shani Dev special reading, of course because of the Saturn transit that has happened, or that rather happened yesterday on 17th of January. So as an astrology enthusiast, I was totally excited about this. Shani Dev coming back in his own zodiac of Aquarius. So I've been studying, reading things about it, and I thought why not build up a reading on this. So while I'm working on that reading, and it will take a time to come back, let's do a quick reading on one of your questions जो आपने पूछा है टुनीशा के बारे में कि where she is. और जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया कि what should I tell. I mean, I don't know where she is, and or quite possibly she is in the spiritual realm, and that kind of urged me to why not ask angels where she is, or even probably what she feels about the whole thing that happened to her. So while I know that some people will not like me doing this reading on Tanisha, but then okay, there will always be few people who will not like what you do. So those people shouldn't waste their time watching things that they don't like. They should watch things that give value to their time and energy, because your time and energy is not coming back to you guys. So only invest your time and energy in something that is worth your time and energy. Okay. With having said that, let's ask the angels. This is a guidance for someone who requested this reading. I'm doing this reading because I feel guided to do this. As in guided to do this, I don't feel any restriction to do this reading. I feel that when I don't feel any restrictions in doing some reading, I feel that the answers are meant to come from the angelic realm. जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे I am probably one tarot reader who has explored Sushant's and Ankita's reading relationship at length, and people love. I have people on my channel who are exclusively Sushant and Ankita's fan, and while I appreciate that, they want me to do this reading, bring out these readings more and more. Sushant or Ankita ki reading, I think if I bring one reading every day, they will be happy to flow with it for the sheer love that they have for the couple. Lekin I cannot do this because it's not that every time I feel inspired to do Sushant Ankita reading. I don't feel inspired, so that is some kind of a blockage. Maybe the reading is not meant to come. Maybe the message is not supposed to come. Or even if I just do it for the heck of it when I'm not feeling inspired, trust me, it is not going to move you in the way it usually moves you.
So, coming back to the fact that I don't feel any restrictions in doing this reading and checking up on Tunisha, how she is feeling or what she has to say on the whole thing that happened with her, let's do this reading. I'm going to use this easy breezy dolphin and mermaid cards, क्योंकि जब भी एंजेलिक रेल्म से कोई देखता है तो मुझे लगता है कि they are beyond this 3D and I don't want to tie them in the tarot, which basically is our 3D perspective of everything. So let's see, ask the angels, what if what Tunisha has to say about the whole thing. Where is she? Okay, where is she? Wherever she is protected and you are being helped. Okay, let's try to understand this reading, guys. Wherever she is protected. You and your loved ones and your possessions and safe and protected by heaven. Where she is. Where she is. ये वाला कार्ड उल्टा आया है. But this one is protected. तो एक चीज तो हम डेफिनेटली पिकअप कर सकते हैं इस कार्ड से कि wherever she is feeling protected. यहाँ पे ये इमेज को वी कैन नॉट इग्नोर, द स्पीक्स वॉल्यूम. यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक छोटा सा बच्चा है जिसको उसकी माँ ने बिल्कुल उसको गले से सीने से लगा के बैठी हुई है. इस what do we understand by this? We clearly understand we are talking when the soul leaves this earthy plane, उसके साथ जो लास्ट मोमेंट में हुआ रहता है उसका इम्पैक्ट उस पर रहता है, गहरा रहता है. Whatever happened with her when she, maybe just hours before she left or couple of days before she left, or in what circumstances she left, what made her leave this earthy plane, ये सारी चीजें will contribute to how she is feeling on the other side, guys. कभी कभी जो सोल होती है बहुत ज्यादा ही डर जाती है. They feel so unprotected because of whatever has happened to them in the earthy realm, कि they take really their time to cross over. जो एक जैसे कि हम when we cross this realm, earthy realm cross करते हैं, तो where we finally how do I explain you? There are various levels through which the soul paths. It's not that कि आप मर जाते हैं और डायरेक्टली आपका ट्रांजिशन हो जाता है. कभी कभी सोल डर जाती है और वो एक बारबेडोस या फिर एक बार्डो, शायद बार्डो बोलते हैं उसको, एक वो जगह रहता है जहाँ पे वो सोल ना आगे बढ़ नहीं पाती है, बिकॉज द सोल इज रियली शॉक्ड. इट इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट हाउ द थिंग्स फोल्डेड और अनफोल्डेड इन देयर लाइफ. तो वो डर जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती है. ये शॉक के कारण भी हो सकता है, विथ अनटूवर्ड इवेंट लाइक मर्डर और इस तरह की चीजें होने के कारण भी होता है. और कभी कभी सोल अचानक से कुछ अगर उसका जान चला गया है तो द सोल गेट्स वेरी शॉक्ड एंड अटैच्ड टू द बॉडी, और तभी भी वो आगे नहीं बढ़ती है. तो इन दोनों केसेस में ही, चाहे कोई भी किसी भी वजह से सोल अगर शॉक्ड है तो उसको हीलिंग की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे एंजल्स जो हैं उस सोल को हील करते हैं एंड तब वो सोल आगे ट्रांजिशन कर पाएगी. तो ये जो बीच का पैसेज होता है, वेयर दे आर नॉट पार्ट ऑफ द अर्दी रेल्म एनी मोर, दे हैव क्रॉस्ड द अर्दी रेल्म बट दे आर स्टिल नॉट पार्ट ऑफ एंजेलिक रेल्म इन अ सेंस की, स्पिरिचुअल रेल्म इन अ सेंस की वहाँ पे भी काफ़ी लेयर्स होते हैं, लेवल होता है. अगर सोल अगर डर गया है, जैसा कि आप इस कार्ड से देख सकते हो कि सोल अगर डर गया है तो वो उसको हीलिंग की ज़रूरत है और एंजल्स उसको हील करेंगे, और जब वो हील करेंगे तब वो आगे बढ़ेगा अपने लाइफ को. फाइनली वो अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठ के एनालिसिस करेगा उसका, कैसा हुआ, क्या हुआ उसके लाइफ में, क्या उसके सोल लेसन्स के हिसाब से चीज़ें हुई. और जैसा कि मैंने बोला कि सोल एंजल्स उसको हील करेंगे और तब फाइनली बैठ के वो अपने पूरे लाइफ को एक बार फिर से सरसरी नज़र से देखेगा, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, वो सारी चीज़ें बात होंगी स्पिरिट गाइड्स के साथ. और फिर जब वो एक्सेप्ट कर लेगा
हील हो जाएगा तब वो अपने आगे की जर्नी में आगे बढ़ेगा। जब तक कि उसकी हीलिंग नहीं होती है, वो बारडोज, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बारडोज इज द नेम ऑफ दैट प्लेस, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड, वेयर सोल स्टेज देयर टू हील इटसेल्फ, और एंजल्स उसको हील करने में हेल्प करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को ऐसे पकड़ के जकड़ के बैठा हुआ है जैसे कि वो बहुत डर गया है, और उसको बाकी सारी दुनिया से वो शी इज द पर्सन इज प्रोटेक्टेड हियर। ठीक है, हालांकि टुनिशा की मॉम को बहुत सारी चीजें बोला जा रहा है कि वो टुनिशा उसको, आई मीन यू नो व्हाट द स्टोरीज आर गोइंग ऑन इन दी न्यूज, आई डोंट वांट टू रिपीट ऑल दैट। लेकिन यहाँ पे देखो, ये बच्चा जो है अपनी माँ, नाउ दिस इज अ मदर फिगर, उसको पकड़ के बैठा है। इससे मुझे लगता है कि उसकी मॉम के बारे में जो भी बोला जा रहा है कि डांटती थी या फिर वो कुछ, उसकी मॉम ऐसी विशेष मुझे नहीं लगती है। उसकी मॉम उसको उतना ही डांटती थी जितना कि किसी की भी मॉम किसी को भी डांटेगी, क्योंकि उसका वो बच्चा है। ओके, एंड शी इज लाइक रियली हगिंग टू हर मॉम। इट्स मोर लाइक कि उसको अपनी मॉम से दूर कर दिया गया, या फिर वो जहां पे भी थी शी वॉज नॉट फीलिंग सेफ। ओके, लास्ट मोमेंट में वो जहां भी थी, जहां पे उसकी जान गई, वो सेफ फील नहीं कर रही थी। और इसीलिए अब वो जो एंजेलिक रेल्म में है, उसने इस तरह का कार्ड दिया है जहां पे एक मदर फिगर को वो शायद याद कर रही है अपने, और उसके, एंड शी इज हगिंग टू हर चेस्ट। इन ऑल एरियाज शी इज लुकिंग फॉर प्रोटेक्शन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए प्रोटेक्शन। अब गाइस, प्रोटेक्शन की बात कहाँ आती है? प्रोटेक्शन की बात तब तक नहीं आएगी जब तक कि यू आर फीलिंग थ्रेटेंड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नोट। जब तक कि कोई डरा हुआ नहीं है, वो प्रोटेक्शन के बारे में नहीं सोचेगा। जो हमेशा प्रोटेक्टेड रहा है, उसको प्रोटेक्शन की वैल्यू नहीं पता है। अनलेस एंड अनटिल कि कोई डरा हुआ है, वो प्रोटेक्शन की बात उसके दिमाग में नहीं आएगी। तो ये भी पता चलता है कि लास्ट मोमेंट में एक शी वॉज थ्रेटेंड, इवन शी वॉज, कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे उसका पूरा एक प्रोटेक्शन का जो शील्ड था वो खत्म हो गया। व्हाट आई मीन टू से इज दैट हर बाउंड्रीज वर broken. Maybe she was attacked in some way. Now I'm not telling that somebody forced her to do something. Maybe she did something, but somewhere she feels कि उसका protection नहीं हुआ and she was threatened, that kind of a thing. Your loved ones and your possessions safe, protected by heaven. And I also get that she's somewhere protecting her mother also, because ये mother figure और ये छोटा सा बच्चा जो है बहुत ही कॉन्सिक्यूस है, बहुत ही स्ट्रांगली आके हमसे बात कर रहा है। वेयर इज शी, हमने बात किया है ना, यू आर बीइंग हेल्प्ड। हेवन इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू इवन इफ यू डोंट सी। शी इज फीलिंग प्रोटेक्शन। जहां पे भी है वो प्रोटेक्टेड तो फील कर रही है, बट यहां पे उसने क्या किया है कि वो अंडरवर्ल्ड को ऊपर कर दिया है उसने। आई वंडर इफ हर केस इज नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ हेल्प और लाइट दैट शी वांट्स probably to be on her case, क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड, आई मीन अंडरवर्ल्ड एज इन अंडर वाटर का दिस इज अप above the water and this is under the water. Under the water रोशनी नहीं होती है, डार्कनेस होता है, और वहां पे शायद हेल्प भी नहीं पहुंच पाता है इजिली। आई फील दैट समवेयर शी इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स समथिंग दैट इज इन द डार्क। कुछ है जो डार्कनेस में है, and I wonder if she is talking, because here she is feeling protected. She is in the angelic realm. She is being protected. Okay, all right. तो जैसा मैंने आपको सोल का स्टोरी सुनाया कि जब सोल थ्रेटेंड फील करता है या फिर उसके साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस हुआ रहता है जिसके कारण वो डर गया है और उसे हीलिंग की जरूरत है, और जो कि एंजल्स जो है हमारे उसको हील करेंगे, तो I think she is in that place, where healing हो रही है उसकी. It has not really happened. You are being helped. She is not probably able to see this, क्योंकि ये बच्चा को देखो अभी भी जैसे कि वो बिल्कुल पकड़ के बैठा हुआ है. ऐसा नहीं है कि ये बच्चा बहुत पीसफुली सो गया है. Just see the card clearly. This बच्चा is really clinging and
द मदर स्टिल हैज टू सूद हर, ताकि वो चुप होके सो जाए आराम से, लेकिन वो अभी तक सोया नहीं है। और यहाँ पे मुझे कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि शी इज वाइल शी इज बीइंग हेल्प्ड, शी इज नॉट हील्ड येट, यू नो। तो शी इज इन द एंजेलिक रेल्म, जहाँ पे ऑल राइट, मैंने बारडोज का बात बताया ना, तो ये वही वाला जगह ऐसा लग रहा है जहाँ पे लाइट अभी पहुंचना बाकी है, पहुंचा नहीं है। सो शी इज समवेयर इन अ प्लेस वेयर प्रोटेक्शन इज वॉज द मेन इशू, मे बी बिकॉज ऑफ वट एवर हैपेंड इन हर लाइफ। अभी वो लोग उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंजल्स उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आई मीन हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बट येट द लाइट हैज टू स्टिल रीच दैट पार्ट वेयर शी विल बी हील्ड, सूद्ड एंड फॉल इनटू स्लीप। तो इसमें भी टाइम लगेगा। शी इज नॉट हील्ड इज व्हाट आई एम गेटिंग। बैक ऑफ द डेक में देख लेंगे कार्ड क्या है। ब्लेस्ड चेंज आने वाला है लेकिन आया नहीं है। ओके चलो देखते हैं। While I don't know any message from what can we ask if the soul is not healed, I don't know how can you ask about what she feels about this. Okay, dear angels, is there anything that Tunisha would want to share about whatever happened with her, anything that she would want to tell, or anything that she wants to tell? Angels, anything that Tunisha wants to tell? Let's see. Anything that she wants to tell. Okay. Extra magical energy surrounds your situation right now. Synchronicity, father healing, consult an expert. Father healing. Yes. ओके सो यहाँ पे है रेडी स्टडी गो। ये रेडी स्टडी गो तो नहीं है, बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट बारडोज एंड हाउ यू नो हर probably her healing is happening. ठीक है, she is not ready to move forward. यहाँ पे भी अगर आप देखो, अगर ये छोटा बच्चा है तो अगर ये इस तरह से अपराइट आया रहता ये कार्ड, तो शी इज शी इज सिटिंग ऑन द डॉल्फिन एंड शी कैन मूव अराउंड, बट नो शी कैन नॉट मूव अराउंड। तो यहाँ पे भी एक मूवमेंट में फ्लो नहीं है, मूवमेंट इज रिटार्डेड, मूवमेंट स्लो हो गई है। इट्स लाइक अ हैंग्ड मैन पोजिशन, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। यहाँ पे भी इट्स नॉट फ्री फ्लो, इट्स लाइक देयर इज सम वर्क दैट नीड्स टू बी डन। अब यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट शी वांट्स टू टेल। Divine magic, extra magical energy surrounds your situation right now. यहाँ पे फादर हीलिंग है, जहाँ से ऐसा लगता है कि शी मिस्ड द फादर इन हर लाइफ अ लॉट। यू नो, जब फादर होते हैं, ही इज while mother is about taking care of our needs, understanding, father is importantly about protection. You know, the masculine energy protects us. और यहाँ पे भी protection is something that she is talking about. So what I'm getting is that yes, with father healing, she really missed a father figure in her life. Maybe, you know, she always had to be very careful of everything because कोई father नहीं थे, या फिर कोई एक मेल फिगर जो होता है, स्पेशली फादर ऑफ कोर्स, और या फिर भाई होते हैं आपके, या फिर हस्बैंड होते हैं बाद में, हु इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू, प्रोटेक्ट यू, कीप यू सेफ. शी मिस्ड दैट थिंग इन हर लाइफ. It was more like she was also earning everything. She had to be very strong to go out and start earning and be mature in her life. तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि उसको she couldn't be that carefree self. When you have a father, you can depend on father for everything. You know that there is a person you can come back home and you can tell your worries and that person will take care of everything. तो वो उस तरह की चीज़ वो कभी फील नहीं कर पाई अपने लाइफ में, क्योंकि we know that her father didn't used to stay with her, है ना.
तो यहाँ पे फादर हीलिंग, फादर को शी यूज्ड टू मिस अ लॉट एंड दैट्स व्हाई शी डिडंट यूज टू फील वेरी प्रोटेक्टेड. एक जो आउटर कवरिंग होता है ना आपका, जो आपको प्रोटेक्ट फील कराता है, जो शेल का कवर होता है, जो फील प्रोटेक्टेड रहता है, जिसके कारण अंडा, वो कहीं मिसिंग है. दैट इज वाई फादर हीलिंग आया है यहाँ पे. Synchronicity. What is this synchronicity is telling? Your prayers and questions are being answered by synchronistic events. Notice them in order to increase their flow. Okay. How is she feeling? How is she feeling? Divine magic. Okay, the light has gone. All right. तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बात है. We asked that how is she feeling, or maybe what she wants to tell about it. Consult an expert. More information is needed. Contact someone with an expertise. What does this mean? She is being helped. She is being helped. Experts are helping her. Green पहाड़ है. Greenery is about healing. She is being healed. Divine magic surrounds her. Divine magic surrounds her. How do we say divine magic surrounds her? We'll take a clarifier for these 3 cards and see what information we can get. Synchronicity ka we will take a card. Expert. Okay. यहाँ पे देखो हमने क्या बात किया कि शी इज बीइंग हील्ड. वहां पे एंजल्स उसको हील कर रहे हैं, उसके सोल को. यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, टेक अ नैप, टेक सम रेस्ट. There is a divine magic that is working around her that is going to make her feel at ease, rest. क्योंकि वो जिस तरह से यहाँ से गई है, definitely it has been a very bad experience for her. तो वहाँ पे angels उसको heal कर रहे हैं divine magic से. Okay, so divine magic is helping. Angels का जो divine magic है, it is going to help her to heal and rest. Healing तो बाद में होगी, पहले जो वो shock है, जो soul shock हो गया है, उसको आपको pacify करना है कि वो सो पाए. क्योंकि यहाँ पे जो सोल है उसका काफी डरा हुआ है. इट्स लाइक क्लिंगिंग ऑन टू समथिंग जो भी उसको सेफ थोड़ा सा लग रहा है. फादर हीलिंग को भी उसमें काफी एक जो प्रोटेक्टेड, जो जिस तरह से वो गई है इस अर्थ से, काफी डरावना है. एक सोल डर जाएगा जो भी उसके साथ अगर होगा, स्पेशली अगर वो बहुत जो भी सोल है, unless until you are some very old soul and you know that you have come with some specific purpose where things will be very difficult for you. सुशांत का बात कर रही हूँ. तो you are somewhere prepared for your soul purpose. लेकिन यहाँ पे जिस तरह से चीजें हुई हैं, वो डर गया है उसका सोल बिल्कुल, और फादर हीलिंग को काफी मिस कर रहा है. ऐसा है कि जैसे जिस तरह से चीजें हुई ना उसके साथ, उसके कारण उसकी लाइफ की जो एक कमी थी ना, वो काफी ज्यादा एग्रेवेट हो गई. उसकी तरफ पूरा इशारा चला जा रहा है, फादर हीलिंग के तरफ. तो अभी तो जैसा हमने बात किया कि उसको सोल हील करेंगे, तो वो अभी डिवाइन मैजिक काम कर रही है कि वो रेस्ट करके थोड़ा हील कर पाए. क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पहले आया है एंड देन उसकी हीलिंग होगी. वेरी गुड, यस, इट इज फॉलिंग इन प्लेस. सिंक्रोनिसिटी. तो ऐसा था कि जैसे योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड एंड यू आस्क द क्वेश्चंस, यू विल गेट द आंसर थ्रू सिंक्रोनिस्टिक कार्ड्स एंड व्हाटएवर साइंस. तो पहले डिवाइन मैजिक उसको रेस्ट करवा रही है. रेस्ट करो, टेक इट इजी,
टेक डीप ब्रेथ, या फिर जैसे भी डिवाइन मैजिक उसको रेस्ट कराने में, उसको पैसिफाई कराने में, जो बच्चा डर गया है बहुत उसको चुप कराना है। उसके बाद देखो, कोई बच्चा अगर चुप रो रहा है तो आप पहले उसको शांत करोगे, रोना बंद करेगा, तब उसको आप धीरे धीरे समझा के नॉर्मल करोगे, और बाद में वो खुशी दोगे या वो स्माइल करे या लाफ करे, वो सब बात की चीजें होती है। तो वो उसके पहले बहुत हीलिंग की जरूरत है। तो अभी तो उसको रेस्ट पैसिफाई करने के लिए लगाया, क्योंकि प्रोटेक्शन इज समवेयर, प्रोटेक्शन वॉज रियली इन टैटर्स आप बोल सकते हैं। उसका जो प्रोटेक्शन वाला एरिया है ना, शी फेल्ट रियली थ्रेटन्ड एंड टैटर्ड एंड इवन अटैक्ड द वे शी वेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। यहाँ पे है। उसके बाद क्या होगा, हीलिंग हार्ट, उसके बाद हीलिंग स्टार्ट होगी उसकी, ठीक है। ओके, फादर हीलिंग हम देख रहे हैं प्रोटेक्शन के कारण बहुत ज्यादा उसके सरफेस पे आ गया। एक जो फादर की कमी रहती थी उसके लाइफ में, जिसको शायद वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा लगाव के कारण या प्यार के कारण उसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पे देखो कार्ड क्लियरली आके बता रहा है फादर हीलिंग। शी यूज्ड टू मिस दैट मस्कुलाइन एनर्जी इन हर लाइफ विच वुड प्रोटेक्ट हर, यू अंडरस्टैंड, and probably that is why she couldn't stop herself from clinging on to any relationship. Somehow she couldn't stop her from being too dependent on any masculine energy around her. वो चीजें हैं। कंसल्ट एन एक्सपर्ट में आया है ट्रेजर। यहाँ पे एक्चुअली इफ यू सी नो, I don't know, this image always looks to me like an alien. और यहाँ पे हेल्प हो रहा है, मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, कॉन्टैक्ट समवन विद एन एक्सपर्टाइज इन दिस एरिया, मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। और यहाँ पे ट्रेजर चेस्ट उल्टा है, यानी कि थिंग्स आर स्टिल नॉट, यहाँ पे भी एक हिडन एलिमेंट है। और अगर आप यहाँ पे देखो, यू आर बीइंग हेल्प्ड एंड येट इट इज नॉट, इट्स लाइक समथिंग इज इन द प्रोसेस। यहां पे यू आर बीइंग हेल्प बट ये ब्लॉक्ड है। तो समवेयर यू आर इन द हैंग्ड मैन पोजिशन, जहां पे चीजें हो रही हैं, हीलिंग हो रही है, हीलिंग भी नहीं हो रही है अभी, बहुत हीलिंग के पहले का ही काम हो रहा है, वेयर शी विल बी पैसिफाइड एंड देन शी विल टेक रेस्ट एंड देन of course the whole process that starts with where you, once you are healed, then only you can start looking at the chapter, your chapter spent, meaning your life spent on earth, that this lifetime, और क्या आपने सीखा क्या नहीं सीखा और कैसे क्या हुआ। तो अभी तो ऐसा है कि ये ट्रेजर चेस्ट ना खुला नहीं है, बंद है अभी। और उसके पहले तो इट्स मोर लाइक एक बारडोज वाली फीलिंग आ रही है, यू आर इन द बारडोज, उसकी हीलिंग चल रही है। और वो जब तक सारी चीजें नहीं होगी, जहां पे वो प्रोटेक्शन ही उसका टारगेट हुआ है, शी फेल्ट वेरी थ्रेटन्ड इन हर लाइफ, फादर को उसने मिस किया। तो इतना सारा चीज जो एक अटैचमेंट, एक डर बैठा हुआ है ना, उसके कारण उसकी हीलिंग ही चल रही है बेसिकली एंजेलिक रेल्म में। उसके बाद ही कुछ होने वाला है कि उसने इस इनकारनेशन में क्या कुछ सीखा। जो आप सीखे होते हैं वही आपका ट्रेजर चेस्ट होता है। हम जो भी सीख के जाएंगे इस अर्थ से, वही हमारा ट्रेजर चेस्ट है। द ओनली ट्रेजर चेस्ट दैट वी कैन कैरी विद आवर सेल्व्स, आवर लर्निंग्स, आवर एक्सपीरियंसेस, नथिंग एल्स डू वी कैरी एज अ सोल फ्रॉम हियर। जिस चीज के लिए हम परेशान रहते हैं पूरे जिंदगी, ये अर्न करना है, वो अर्न करना है, वो कुछ भी चीजें साथ नहीं जाती हैं। जाती है साथ में तो बस आपका एक्सपीरियंस, आपका लर्निंग्स, आपके गुड कर्मा। तो वो चीज अभी नहीं, वो स्टेज आया है जहां पे शी कैन ओपन दिस लाइफ की। इट्स मोर लाइक कि शी इज ओपनिंग द आकाशिक रिकॉर्ड एंड कि क्या क्या लर्निंग्स हुई है, ये अभी नहीं हुआ है, इट हैज टू हैपन। और जब आप अपनी लर्निंग सीख लेंगे तब वो ब्लेस्ड चेंज लेके आएगा, क्योंकि जब हम अपने लेसन सीख लेते हैं तो चेंज आता है हमारे लाइफ में, ब्लेस्ड चेंज आता है। तो वो चीज है। तो आर यू गेटिंग दैट हाउ शी इज स्टक इन, I won't say stuck, but how she is being taken care by angels, light beings, making her feel protected and all that. I don't know how, if this reading really resonates with you or what you are thinking, if I am cooking this up, but I don't think I am cooking this up because I have taken all my time to get to understand the cards जो भी आए हैं।
तो बस एक फाइनल मैसेज लेके, सो दैट लेट्स सी इफ इट हैज टू कम ऑल टुगेदर, इट कैन कम. एनी angels, do we need to know anything about Tanisha and angelic realm? Any guidance you would want to give on her? People want to know what she is doing, where she is. Value your self-worth. You're God's precious gem. All right. Value your self-worth. आप समझ रहे हो कि कैसे लिंक हुआ यहाँ पे. जो आदमी प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखा आपने ना कैसे कि शी इज नॉट फीलिंग वर्दीनेस का भी कार्ड एक बार पीछे में ही था. तो हाउ द पर्सन इज नॉट फीलिंग प्रोटेक्टेड, फादर फिगर को मिस कर रहा है. क्योंकि फादर फिगर नहीं है लाइफ में, तो देर इज अ टेंडेंसी टू क्लिंग ऑन टू अ मस्कुलाइन एनर्जी, or rather to get over dependent without even probably you knowing that you are getting over dependent. You are getting over dependent on something, on your relationships. तो वो कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक फादर एनर्जी जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो आपकी लाइफ में मिसिंग है, तो वो एनर्जी भी आप उस तरफ डायरेक्ट कर दे रहे हो विदाउट यू नोइंग इट, बिकॉज समवेयर इन योर सबकॉन्शियस यू आर मिसिंग दी प्रोटेक्शन दैट यू शुड हैव गॉट फ्रॉम योर फादर. तो वहां से एक, और शायद हो सकता है आपको पता भी चल जाता है कि आप ओवर डिपेंडेंट हो जाते हो, तो सेल्फ वर्थ पे कहीं ना कहीं ये चीजें इंपैक्ट हुई हैं. समझ रहे हो? और यू आर गॉड्स प्रेशियस जेम. अब आपको अगर ये मैसेज आ रहा है कि वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, इसका मतलब है कि आप अपने वर्थ को वैल्यू नहीं कर रहे हो. और शायद इसीलिए उसने अपनी लाइफ भी ले ली. उसे हम लाइफ क्यों ले लेते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारा कोई जरूरत नहीं है इस दुनिया में, तो हमारा सेल्फ वर्थ बिल्कुल टैटर्स में है ना. तो यहाँ पे क्या है, हमने पूछा कि क्या कोई गाइडेंस है आप सुनीशा के बारे में बताना चाहते हो, बिकॉज दिस इज व्हाट वी गॉट इट, दिस इज व्हाट वी कुड कनेक्ट द डॉट्स एंड गेट टू इट, एंड स्टिल वी वर नॉट नोइंग इफ इट इज जस्ट अ मम्बो जम्बो कुकिंग अप द स्टोरीज. तो हमने बोला कि एंजल्स आप हमें एक कार्ड दे के सारी चीजों को कनेक्ट करने में हेल्प करिए. लेट्स फाइंड वेदर वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और वी आर जस्ट लॉस्ट समवेयर. एंड वी गॉट द आंसर, वैल्यू योर सेल्फ वर्थ. हाउ इज द एंजेलिक realm working with Tanisha's soul in piecing together, healing her self worth, जो कि वो जिस तरह के थॉट्स, फियर्स, थ्रेट, फीलिंग अनप्रोटेक्टेड, ये सारी चीजों को लेके जो उसका सोल गया है ना, वो बिल्कुल डरा हुआ है. जैसा कि आपने कार्ड्स में भी देखा, मैंने बार बार आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की. और यहाँ पे क्या है कि उसके सेल्फ वर्थ को उनको हील करना है. और सेल्फ वर्थ बहुत ज्यादा डरने के कारण वो बिल्कुल टैटर्स में हो गया. एंड दैट इज वाई शी टुक हर लाइफ. टेकिंग योर लाइफ इज द एक्सट्रीमेस्ट स्टेप दैट यू कैन टेक ऑन दिस अर्दी realm. तो वहां पे समझ सकते हैं आप कि कितना ज्यादा उसको हीलिंग की जरूरत है, केयर का जरूरत है, और उन सारी चीजों पे काम हो रहा है उसके. क्योंकि कोई अगर अपना लाइफ ले रहा है यहां से, सेइंग बाय बाय टू देयर लाइफ, तो उसके दिल में बस यही है कि उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना. उसका सेल्फ वर्थ चूर चूर हो चुका है, और वहां पे उसकी हीलिंग हो रही है. वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, योर गॉड्स प्रेशियस जेम. शी इज नॉट वैल्यूइंग हर सेल्फ. वो ये सोच के गई कि उसकी जरूरत नहीं है किसी को. This is what healing is happening. Spiritual path. That is the guidance, guys. Thank you so much for watching. To let me know your thoughts on this, and I will see you again. Like, share, and subscribe if you like the guidance, and I will see you again soon. Bye.